हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई एम हियर विद द सेकंड पार्ट एंड अब हम स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे। सो एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। Okay, so with the first question of statistics, which is the left part of the table providing a description of rows. So yes, that is stub. The suitable formula for computing the number of class interval is 1 plus 3.322 log n, where capital N is the total number of observations. Which one of the following is the source of primary data? Questionnaire filled by enumerators. Good thing about theory question is they don't waste your much time. Either you know or you don't know. What is the variance of random variable x? You know, when variance of random variable x is 17 and we have to find variance of y equal to 2x plus 5. Okay, so we know that if y is equal to a plus bx, then variance of y is equal to b square variance of x. Here b is equal to, you can see that is 2. So 2 square 4, 17. The answer is 68. If the variance of given data is 12, their mean is 40. What is the coefficient of variation? CV. So coefficient का formula है standard deviation upon mean into 100. So here variance is 12, so standard deviation is root 12 upon 40 into 100. So here we get the help of our calculator. 12 का root divided by 40 into 100, we get 8.66, 8.65. हो सकता है कि एग्जाम में एक्चुअली 8.66 ही दिया हो, but no, in any ways the answer is option D. In a given set of data, if all data are of same value, then the variance would be okay. So in fact, for any measure of dispersion, if we have constant data, the value will be 0. So option A, 0. In if arithmetic mean between two numbers is 5, geometric mean is 4, and the value of harmonic mean. So now we know the relation A into H is equal to G square. So H is equal to G square, that is 4, upon A, that is 5. So 16 by 5 we have 3.2. My advice would for all the students would be, for any calculations, please make use of calculators. Average age of 15 students in a class is 9 years. So the total for 15 students, the total age would be 135, that is 15 into 9. Out of them, the average of 5 students is 13 years. So that means the total age of 5 students will be 13 into 5, 65. Then the average age of 8 students is 5 years. So total age of 8 students will be 8 into 5, 40. So what is the average of remaining 2 students? So first of all, what is the total age of these two students? That will be 135 minus 65 minus 40. So 135 minus 65 minus 40, we get 30. So the total age is 30 students. So average age will be 30 divided by 2, 15 years. Mean deviation is minimum when deviations are taken from median. The first quartile is 56.5, Q1 is 56.5, and third quartile, that is Q3, is 77.5, the coefficient of quartile deviation. So we have to find out Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100.
that is 77.5 minus 56.5 upon 77.5 plus 56.5 into 100. So here we are going to use memory function. So make sure that your memory is all clear. There is nothing stored in the memory. So 77.5 plus 56.5 equal to, that comes to 134. I store that in memory. 77.5 minus 56.5, that comes to 21. Divide by whatever is stored in memory, equal to into 100. So that is 15.67. Yes, we have option B over here, 15.67. OGAI for more than type and less than type distributions intersect at median. The median of the observation 42, 72, 35, 92, 67, 85, 72, 81, 51, 56 is, okay, so first 35, we write down all the observation in ascending order. Then I think we have 42, then 51 and 56. 51, why these figures are flying? 56, 67, then we have 72 and 72 two times. Okay, then we have 81, 85 and 92. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And in the question also we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have written all the 10 observations. So this would be like 10 by 2, fifth, and 10 plus 2 by 2, sixth. The mean of fifth and sixth observation. So mean of 67 and 72, because this is 1, 2, 3, 4 and fifth observation. So this will be 72 plus 67 divided by 2. That comes to 69.5. So option A is the answer. If the sum of squares of the value equals to 3390, sum of squares of the values, that means summation x square is equal to 3390. Numbers of observation are 30. N is equal to 30. Standard deviation is 7. So what is the mean value of the observation? We have to find x bar. So standard deviation formula is root of summation x square upon n minus x bar the whole square. So 7 square, like if I square on both sides, so we'll get rid of this square root sign. So 3390 upon 30 minus x bar square. So x bar square will be equal to 3390 upon 30 minus 49. So I'll just make all the calculations now on calculator only. 3390 divided by 30 minus 49, so that comes to 64. The square root is 8. So here x bar is 8. The mean of 50 observation is 36. Okay, so n is equal to 50. X bar is 36. If two observations 30 and 42 are to be excluded, then the mean of the remaining oh, this is actually very simple question. 30 42 का अगर आप मीन फाइंड करोगे तो 36 ही आता है. तो वैसे ऑब्जर्वेशन निकालने से मीन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. द आंसर वुड बी स्टिल 36. बट स्टिल अगर आपको इसका एक्चुअल कैलकुलेशन देखना है तो समेशन एक्स ईयर विल बी इक्वल टू 36 इंटू 50. और फिर दो ऑब्जर्वेशन निकल गए तो दैट विल बी -30 -42. एंड 50 में से दो ऑब्जर्वेशन जाएंगे तो 48. तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे -30 -42
divided by 48. So you'll still get the answer as 36. If arithmetic mean and geometric mean between two numbers are 5 and 4 respectively, then these two numbers are. अब नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन हमको ऐसे ही दिया हो तो विदाउट ऑप्शंस तो हमको सब वो फॉर्मूलाज डाल के सॉल्व करने होते हैं. यहाँ पे हम सीधा ये देखेंगे अरिथमेटिक मीन अगर 5 है, ओके, तो वो जो दो नंबर्स है a प्लस बी वो 10 होना चाहिए. और अगर ज्योमेट्रिक मीन 4 है तो जो दो नंबर्स है a इंटू बी वो 16 होना चाहिए. So I think 2 and 8 satisfy this condition. The standard deviation of binomial distribution is root of NPQ. Which of the following is not a method of dispersion? Not a method of dispersion. Standard deviation है, mean deviation, concurrent deviation method. Because range, standard deviation, mean deviation तीनों है. Concurrent deviation method जो है वो correlation के लिए calculation एक method है. Mean of x is 10. Okay. Mode is 7. Find the value of median. So we know that formula mean minus mode is equal to 3 times median, 3 times mean minus median. So mean minus mode 10 minus 7, that will be equal to 3. 3 times 10 minus median, 3 cancel, तो ये 1 हो जाएगा. 1 is 10 times median. So median is equal to 10 minus 1, that is equal to 9. So answer is 9. Now the next question. If the coefficient of variation and the standard deviations are 30 and 12 respectively, the arithmetic mean of the distribution is. Now the formula for coefficient of variation is standard deviation upon arithmetic mean into 100. Okay, so arithmetic mean हम यहाँ लिख लेंगे standard deviation upon coefficient variation into 100. So standard deviation कितना है? 12 है. Upon 30 into 100. 12 divided by 30 into 100. So we get 40. So yes, arithmetic mean is 40. Dash is based on all observation. Dash is based on central 50% of observation. Okay, mean deviation तो based on all observation होता है, लेकिन range नहीं होता है. Mean deviation, yes, mean deviation and quartile deviation is the answer. The relationship between two variables x and y is given by 4x minus 10y equal to 20. The median value of the variable x is 10. The median value of variable y is what will. तो यहाँ पे आपको सीधा बस इस इक्वेशन में ये 10 सब्स्टिट्यूट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 4 इंटू 10, 40 minus 10y is equal to 20. Minus 10y is 20 minus 40. So y is equal to 2. So median value of variable y will be 2. Probabilities. Suppose A and B are two independent events. Probability P of A, P of B not equal to 0. A and B be their complements. A complement, B complement be their complements. Which of one of the following statement is false? So A तो correct है, B correct है, C is false because ये आएगा ना. ऐसा नहीं बोला है कि वो दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स वगैरह. उसके बाद अगर एक्सक्लूसिव इवेंट होता तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो सकता था. The theorem of compound probability states that for any two events A and B, yes, अभी अभी हमने उसी को रॉन्ग किया था. एंड जब मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था, फॉल्स नहीं. इस क्वेश्चन के लिए तो यही करेक्ट आंसर है बिकॉज दिस इज फॉल्स. पैराडॉक्स जैसे हो रहा है, मींस दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज फॉल्स. If a number is selected at random from the first 50 natural numbers, what will be the probability that the selected number is multiple of 3
एंड 4, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोला है. ओके, 3 एंड 4 मतलब दोनों होना चाहिए. दैट मीन्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 12. तो बस ऐसे 4 ही नंबर है, 12, 24, 36 एंड 48. सो दिस विल बी 4/50. और yes, so that is 2/25. If three coins are tossed simultaneously, two cube, तो sample space तो 8 हो जाएगा. What is the probability of getting two heads together? Oh, so यहाँ पे हम लोग को ये नहीं बोला कि two heads होना चाहिए, two heads together होना चाहिए. So like HHT, THH, इस तरह से. oh, और HHH वाला केस भी आ जाएगा. ओके, एंड बाकी जो हमारे केसेस है, जो अगर हम सारे केसेस देखें, एच एच एच, एच एच टी, एच एच टी टी, एच टी, एच एच टी टी, एच टी एंड एच टी, 1, 2 and 3. So answer is 3/8. A machine is made of two parts A and B. The manufacturing process of each part is such that probability of defective part A is 0.08, B is 0.05. What is the probability that the assembled part will not have any defect? Okay, so not defect मतलब 0.02 होना चाहिए यहाँ पे. Okay, so sorry, so will not have any defect. 0.92 into 0.95. This is the probability of not having defect in A and not having defect in B. So 0.92 into 0.95, 0.874. P of A is 1/3, P of B is 3/4, A of A union B is 11/12, P of B, I think इसमें हमको कुछ थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा पहले स्लॉट्स बना देता हूँ. Now, P of B given A is P of A intersection B upon P of A. Now, P of A intersection B is equal to P of A plus P of B minus P of A union B. ये A union B का ही फॉर्मूला है, सिर्फ मैंने इन दोनों के पोजीशन स्वैप कर दिए. So 1/3 plus 3/4 minus 11/12. अगर हम LCM 12 ले लेंगे तो 4 plus 9 minus 11/12. 4 plus 9 is 13 minus 12. 2/12. So A intersection B is 2/12 and P of A is 1/3. 1/3 means 4/12. Cancel हो जाएगा and we'll left with 2/4, that is 1/2. The probability that a leap year has 53 Mondays. So 53 Monday, in fact कोई भी डे होगा तो 2/7 होगा, because leap year means 366 days. There are 52 weeks. इंटू 7 करेंगे तो 364 डेज होता है. फिर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं. ओके, व्हेन निकाले दो. देन ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है. अब यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और सैटरडे संडे 7. तो ये 7 केसेस है, जिसमें से ये 2 केसेस में हमको मंडेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. सो द आंसर इज 2/7.
The speed of number of bikes follows a normal distribution model, which mean 83 km per hour and standard deviation of 9.4 km per hour. Find the probability that the bike picked random is traveling more than 95 km per hour. So here mean is given as 83 or mu. We have to find for speed for x greater than 95 and standard deviation is given as 9.4. So let us try to prepare a diagram. Here this is 83, here this is 95. We want this area, this entire area from 83 on right hand side is 0.5. हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे यूजिंग द टेबल. तो 0.5 माइनस दिस पार्ट शुड गिव अस द आंसर. सो वो आंसर कैसे मिलेगा? 95 माइनस 83 अपॉन 9.4. 95 minus 83 divided by 9.4. So 1.276. Okay. Now just let me go to the table. पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए था, नहीं किया मैंने. इसका जो भी आंसर आएगा 1.276 का उस टेबल के हिसाब से हम उस पे फिर 0.5 माइनस वो करेंगे. आप भी अपने मॉड्यूल में देख सकते हो. मॉड्यूल में ये अपेंडाइजेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, मॉड्यूल में आपको इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है. इस तरह से आपको एक टेबल दिखेगा, ये अपेंडाइजेस लास्ट में. सो 1.27, तो मैं 1.2 पे जा रहा हूँ. उस पे 7th कॉलम में आई हैव 3980. तो 0.3980, 0.5 minus 0.3980, तो दैट इज 0.102. तो ये हमारा आंसर होना चाहिए था. ऐसा मुझे कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है. 95 minus 83 12 होता है. ओके, जस्ट एक मुझे जैसे ऐसे लग रहा है कि अगर ये 12 होता, तो क्या आंसर होता? 95 माइनस 83 अपॉन 12. मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो ऑब्वियसली वो 1 आएगा. एंड इन दिस टेबल for 1 the value is 3413. 0.3413. 0.5 minus 0.3413, तो 0.1587 आता है. तो फिर ये आंसर हो जाएगा. तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो क्वेश्चन है ये कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन हो सकता है. ये दिस इज जस्ट व्हाट आई एम फीलिंग. बट अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका ये आंसर होगा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मुझे skewness of normal distribution, yes, is 0. If Poisson distribution p of x equal to 2, p of x equal to 3, then variance of distribution is, हमको m फाइंड करना है. और वैसे Poisson distribution में p of x equal to x is e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है p of x equal to 2 is p of x equal to 3. So p of x equal to 2 में आएगा e raised to minus m into m square upon 2 factorial
is equal to e raised to minus m into m cube upon 3 factorial. e raised to minus m, e raised to minus m कैंसिल, ये कैंसिल होके सिर्फ एक m बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3. So we get m is equal to 3. So this is the variance. M is equal to 3. Correlation and regression. Pearson's correlation coefficient between x and y is covariance upon standard deviation x, standard deviation y. So that is option A. बाकी ये square है, ये तो उल्टा ही. So option A is the answer. Now equation of the two lines of regressions are 4x plus 3y plus 7 equal to 0 and 3x plus 4y plus 8 equal to 0. Find the correlation coefficient between x and y. तो हम लोग को यहाँ पे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स को आइडेंटिफाई करना है. लेट्स से अगर मैं इसको वाई ऑन एक्स बना देता हूँ तो 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. सो 3y नहीं, इसको हम वैसे लेते x ऑन y बनाते. 4x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 7. x इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 7/4 y. तो माइनस 3/4 ये हम लोग को यहाँ पे मिला है. bxy इज माइनस 3/4. नाउ सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. सो 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 8. y इज इक्वल टू माइनस 3/4x माइनस 8/4. तो बस माइनस 3/4 इंटू माइनस 3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस और माइनस 3/4 ही आएगा. एंड सिंस दोनों नेगेटिव है तो दैट शुड बी माइनस 3/4 एंड 3 डिवाइड बाय 4 इज 0.75. सो आंसर इज माइनस 0.75. If the regression equations are 2x plus 3y plus 1 equal to 0, 5x plus 6y plus 1 equal to 0, then mean of x and y respectively. तो यहाँ पे तो सीधा हमको सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x plus 6y plus 2 equal to 0 माइनस 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 x माइनस 1 equal to 0. So x is equal to 1. ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास तो सीधा हम लोग इसको टिक कर लेंगे. तो चेक कर लेते हैं. 1 और माइनस 1 करते हैं तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 0 5 प्लस यस. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा हमने y फाइंड ही नहीं किया क्योंकि x इक्वल टू 1 फाइंड किया तो और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा उससे. byx 0.5 bxy 0.46 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट rs. तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से तो काफी बेसिक क्वेश्चंस ऐसे लग रहा है. 0.5 इंटू 0.46 और उसका स्क्वायर रूट तो 0.479 दिख रहा है तो दैट इज 0.48. The coefficient of rank correlation between the ranking of following 6 students in 2 subjects mathematics and statistics is. ओके, तो इनके रैंकिंग्स हम दे देते हैं. तो यहाँ पे ये 10 है तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक एंड सिक्स्थ रैंक. चलो कोई टाई नहीं है इसमें. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ओह, मुझे तो पता नहीं. आई थिंक बाय ऑब्जर्वेशन मुझे लग रहा है कि इसमें नेगेटिव आना चाहिए था एंड कोई भी नेगेटिव ऑप्शन दिख नहीं रहा है. बट स्टिल सॉल्व करते तो 6 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा. ये 0. 2 माइनस 1 इज 1 1 स्क्वायर 1 होगा. 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर 9 होगा. 3 माइनस 6 इज माइनस 3 स्क्वायर भी 9 होगा. 1 माइनस 5 इज -4 और -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो 25 35 44 होता है. 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 that is 44. So we have summation d square as 44. Okay, so rank correlation is equal to 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. That is 1 minus
6 into 44. N is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 into 35. 6 into 44 divided by 6 divided by 35. ये प्लस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर आता है माइनस 0.257। तो इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। ओके, बट अगर ये नेगेटिव में होता तो हम ये आंसर मार्क करते। तो आई थिंक दिस इज एम्बिगुअस क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑप्शंस यहाँ से कोई मैच नहीं हो रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन से ही मुझे लग रहा था कि नेगेटिव आना चाहिए। Index number, I guess the last topic. From the following data, find the index number by Laspier's method of summation P1 Q0. Summation P1 Q0 is 99. वह तो Laspier's formula जो है, price index number of Laspier's is equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. Summation P1 Q0 is 99, P0 Q0 is 76 into 100. 99 divided by 76 into 100, so 130.263. 130.25 is the correct answer. Which of the following index measures changes from month to month in the cost of representative basket of goods and services of the type bought by typical household? Okay, अगर ये आपने समझो नहीं भी सुना, लॉजिकली आप सोचो टिपिकल हाउस होल्ड की बात करें तो हम जब परचेस करेंगे गुड्स, हम कौन से प्राइस पे परचेस करेंगे? रिटेल प्राइस पे परचेस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो रिटेल प्राइस इंडेक्स हम देखेंगे उस पे। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज सैटिस्फाइज, यस, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। सो बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है। लैस्पियस इंडेक्स 119 है और पार्शियस 112 है। फिशर्स विल बी रूट ऑफ 119 इंटू 112। तो बस कैलसी यूज करना है इसमें हम लोग को। 115.44 446 to 115.45. In price index, when a new commodity is required to be added, which of the following index is used? Splicing price index is used. So with this, we have covered the statistics part, and now we are left with LR part. Okay, so here we are with the last part of this paper, logical reasoning. So let us continue with logical reasoning. One morning, a boy starts walking in a particular direction. Let's say अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है for 5 किलोमीटर and he takes left turn, अगर वो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट यहाँ पे होगा, and walks another 5 किलोमीटर, he again takes left इस डायरेक्शन में जाके, फिर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब लेफ्ट and walks another 5 kilometer and he takes right and walks 5 kilometers. Now that person is seeing his shadow. Like अगर वो यहाँ पे ऐसे खड़ा है और उसको सामने अपना शैडो दिख रहा है, मतलब सन जो है वो यहाँ पे है। ओके, सो दैट मीन्स दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. सो इफ दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, so this direction is has to be north. What direction he did start initially? The answer will be north. It's 3 o'clock in the watch. If the minute hand points toward the northeast direction, so northeast, so this is minute hand, तो यहाँ पे 12 है तो 3 यहाँ पे होगा. Then the hour hand will point towards southeast direction.
ओके, बिकॉज अगर नॉर्मली अगर आप क्लॉक देखोगे तो 3 इस तरह से बजेगी। तो अगर यहाँ पे अगर मैंने 12 को ऐसे टिल्ट किया है तो 3 भी ऐसे 45 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा, दैट विल बी एट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows with 3 persons in each row. Okay, 3 persons in each row and they are sitting in front of each other. E is not end of any row. तो लेट्स से अगर E यहाँ पे एक इस तरफ हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सेंटर पे बैठा है एंड D इज सेकेंड लेफ्ट टू द F, तो D F यहाँ पे भी इसके नेबर्स भी हो सकते हैं, इसके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। C is neighbor of E and diagonally opposite to D। तो अगर मैं सोच रहा हूँ C यहाँ पे होगा तो D यहाँ पे होगा, तो D एंड F तो E के साथ नहीं है एंड D इज सेकेंड लेफ्ट टू F, तो अगर F यहाँ पे होगा तो ये राइट में हो जाता है, तो F यहाँ पे होगा और D यहाँ पे है, D इज सेकेंड लेफ्ट बराबर। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, C इज नेबर ऑफ E एंड डायगोनली ऑपोजिट टू D, तो C यहाँ पे आ गया एंड B इज नेबर ऑफ F, तो B यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन है, A। Who is in front of C, yes, तो B is neighbor of F, who is in front of C, ये इसका नेबर है, F इसके फ्रंट बैठा है। देन who is sitting diagonally to F, तो बस ये A हो गया, A is sitting diagonally to F, so option C, A is the answer। Find the odd man out। Okay, 34, 105, 424, 2123, 12756। 105 minus 34, 39, 424 minus 105, 139 और 319, एंड फिर बहुत ह्यूज गैप है। 34 इंटू 3 प्लस 3, ओके आई थिंक यही मिल गया हम लोग को। 34 इंटू 3 प्लस 3, 105 इंटू 4 प्लस 4, 105 इंटू 4 प्लस 4, तो ये इंटू 5 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे ये 2125 होना चाहिए था, सो दैट इज द ऑड मैन आउट। अगर 2125 होता इंटू 6 प्लस 6 करते तो 12756 आ जाता। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2123। फाइंड द मिसिंग नंबर द फॉलोइंग सीरीज 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9, 11। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ऑल्टरनेट नंबर्स ये 3, 5, 7, 9, 11 इनकी अलग ही सीरीज चल रही है। सो वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज नंबर्स 5, 19, 41 question mark and 109। 19 minus 5 is 14, this is 22, तो 14 प्लस 8 22 हो रहा है, 22 प्लस 8 30 होता डिफरेंस अगर यहाँ पे, तो ये 71 होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस 38 हो जाता है। यस, सो आंसर इज 71। P, Q, R, S and T are sitting in a line facing west, तो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। सो P, Q, R, S, T जो है वो इस डायरेक्शन में फेस करके बैठे। P and Q are together, okay, P and Q are together and S is sitting at north end, तो ये नॉर्थ है, तो चलो हम S की पोजीशन फिक्स कर देते हैं नॉर्थ में। T, तो उसके पहले ये भी है ना, R इज सिटिंग एट साउथ एंड, तो यहाँ पे R भी आ गया। अब सिर्फ S हो गया, T हो गया, नहीं S और T नहीं हुआ, S हो गया और R हो गया, P, Q, T बाकी है। T इज नेबर ऑफ Q एंड R, ओके, सो T जो है वो इसका नेबर है
और Q का भी नेबर है और PQ तो साथ में है. So who is sitting in the middle? So Q is sitting in the middle. Option B is the answer, Q. A man is facing west. Oh, so west. So west की तरफ देख रहा है. ठीक है. He turns 45 degree in clockwise direction. इस डायरेक्शन में वो 45 डिग्री टर्न हुआ. एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन. वैसे 180 डिग्री कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो वो यहाँ पे आएगा. एंड 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा, फिर इसका एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये 270 डिग्री इधर आ गया अभी. नाउ फाइंड डायरेक्शन विच इज फेसिंग. तो ये साउथ है, साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट ऑप्शन है, यस ऑप्शन है. A certain code language tour is written as 1, 2, 3, 4. Clear is written as 5, 6, 7, 8. Spare is written as 9, 0, 8, 4, 7. Then find the code for care. Okay. ये क्वेश्चन जो है एग्जाम कंडीशंस में डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मतलब यहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि ओके ये सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम कंडीशन में बहुत ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इससे ही यूज टू होते हैं ना. मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 लेटर्स है, 5 नंबर्स है. तो यहाँ पे 5 लेटर्स होते हुए 4 नंबर्स ही है खाली. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बट चलो देख लेते हैं यहाँ पे CARE. तो अभी C यहाँ पे हमको इधर दिख रहा है, उसको हम इससे रिलेट कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा. A हमको यहाँ पे दिख रहा है, उसको ऐसे रिलेट कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा. R यहाँ पे दिख रहा है, 4 है. E यहाँ पे दिख रहा है, 7 है. सो 5, 8, 4, 7. ओके. बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम कंडीशन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट है. एक पूरे पेपर में अब तक ऐसा एक ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, जो एक्चुअली में ऐसा मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा कुछ हटके क्वेश्चन आया है. ये 11, 17, तो नहीं, 8 कहाँ से आ गया, 6, 39, so 22, 85, so 85 minus 39, that is 46. ओके, ये हमको नहीं मालूम है. 281, 447, so there it is 166. ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस कितना है अभी, 16 है. इन दोनों का डिफरेंस 24 है. 16 प्लस 8, 24. तो 24 प्लस 8, यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो 32 होना चाहिए. तो 46 प्लस 32, तो यहाँ पे ये 78 होना चाहिए था. दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 78 आना चाहिए था. सो 85 प्लस 78, 163. 163. लेट अस जस्ट वेरीफाई दिस. अगर ये 163 होता, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाता, 118. ये डिफरेंस कितना है फिर, 40 है. तो ये डिफरेंस जो है 116 और 118 का, क्या 48 है, यस 48 है. तो बराबर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं. द आंसर इज 163. Rose is coded as 6821, chair is coded as 73456, preach is coded as 961473. सर्च क्या होगा, चलो वैसे ही एक बार मैच करके लिखते हैं. CH 73 है, तो ये 73 हो जाएगा. R 6 है, तो यहाँ पे ये 6 लिख लेते. A जो है वो 4 है. E हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 1. एंड S यहाँ पे है 2. So we have 214673, 214673. So option B is the answer.
इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर, सो फादर है, मदर है, 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर, 1 2 3 and 4, तो सन उनकी वाइफ है, सन एंड वाइफ, सन एंड वाइफ एंड डॉटर. Out of the sons, two have 2 daughters each. तो इनके 2 daughters है, लेट्स से इनके भी 2 daughters है, एंड वन हैव अ सन ओनली. ओके, इनको एक बेटा है. हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो 1 मदर, फिर वाइफ 3 4 5 6 7 8 9. 9 इज द आंसर. और अगर एक बार अगर आपको मैक्सिमम मिल गया तो ऐसा भी कुछ चांस नहीं कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया हो, क्योंकि 9 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है. When Rani saw Vineet, okay, she collected, he is brother of my grandfather's son. रानी, ये उसके फादर, ये उसके ग्रैंडफादर. ही इज ब्रदर ऑफ माय ग्रैंडफादर सन. तो अभी ओके, ये क्वेश्चन में 2 तरीके से देखते हैं. एक तो सपोज यही उसका सन है और ये उसका ब्रदर है, तो विनीत है. ओके, तो अगर विनीत ऐसे रानी के फादर का बेटा होगा तो रानी बोल सकती है ना कि यस, उसके ग्रैंडफादर के बेटे का भाई है. तो हाउ इज रानी रिलेटेड टू विनीत? तो वो उसका आंसर हो जाएगा नीस. उस हिसाब से उसका आंसर नीस हो जाएगा. लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है रानी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर का कोई बेटा है, उसका भाई, तो वो तो रानी का फादर भी हो सकता है. लाइक विनीत कैन बी रानीज फादर ऑल्सो. ओके, क्योंकि जो रानी का अंकल होगा, जो रानी का अंकल होगा वो भी तो ग्रैंडफादर का बेटा होगा और उसका भाई रानी का फादर हो सकता है. तो इन दिस केस द आंसर वुड बी डॉटर. बट ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है, बट मोस्टली इंस्टीट्यूट ने या जो पेपर सेटर उन्होंने सोच के यही बनाया होगा कि आंसर नीज है. बट ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है ये. अनन्या इज मदर ऑफ सत्या. अनन्या इज मदर ऑफ सत्या. श्याम इज सन ऑफ भीम. शिवा is brother of Ananya. Shiva is brother of Ananya. शिवा इज ब्रदर. अच्छा, ये शिवा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं. शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या. एंड इफ सत्या इज सिस्टर, अच्छा सत्या लड़की है, सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम. ये अनन्या की बेटी है, ये भीम का बेटा है, भाई बहन है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए. हाउ इज भीम रिलेटेड टू शिवा? ओके, तो ये भीम जो है, शिवा शिवा जो है भीम, भीम की वाइफ का भाई है, तो ब्रदर इन लॉ. सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश. राकेश, राकेश का कोई बेटा है और सुमन उसकी वाइफ है. एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश. ओके, राजेश जो है वो उसके हस्बैंड का भाई है. रमेश इज द सन ऑफ राकेश एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजेश, मतलब यही रमेश हो गया. फाइंड द रिलेशन ऑफ सुमन विथ रमेश वाइफ. Frozen is decoded as OFAPSG. Take the right option, then that depicts molten written in this way. ये दोनों यहाँ पे देखो सेम है, NN. तो यहाँ पे ये G है, यहाँ पे कोई G ऑप्शन नहीं है.
लेकिन ये ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये सब ओ से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, आई थिंक FROZEN, FGRSMNOPZAEFO, इसको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है. तो वैसे ही मॉल्टन MNOPLMUFO, so OFUMPN. OFUMPN. Option C is the answer. So this was a good question. सिर्फ एक लेटर को आगे किया और फिर उसको रिवर्स में उन्होंने कर दिया. राधा मूव टूवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर. पहले हम ये बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर. यहां से सपोज राधा ने स्टार्ट किया है. देन शी मूव टूवर्ड्स वेस्ट a distance of 14 kilometers. From here she moved towards northwest. Okay, northwest मतलब फिर से ये डायरेक्शन में, डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर्स. ओके, ये पैरेलल हो जाएगा इससे. फाइनली शी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट. 4 kilometers towards east. How far is she from? How far is she now from the starting point? I think 10 kilometers होना चाहिए. नहीं, ये यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 7. तो फिर से जब वो 14 किलोमीटर्स यहाँ पे जा रहे हैं और ओके, तो 4 किलोमीटर्स तो हम फिर से आ गए. 4 + 7 11, 3 किलोमीटर्स. द आंसर विल बी 3 किलोमीटर. सिंपल है. देखो हम यहाँ पे 7 गए. ओके, एंड ये तो पैरेलल है ये पूरा. तो इसको अगर मैं पूरे डायग्राम को इस तरह से बना दूं, ये 7 7 सेम, ये 14 और 14 होना चाहिए, जिसमें से ये 4 है और ये 7 है. तो ये बचा हुआ 3 होगा. तो आंसर इज 3 किलोमीटर. PQRS are playing a game of carom. PR and SQ are partner. तो वो PRSQ ऐसे पार्टनर्स है. बाकी ये इनका ऑर्डर्स आपस में चेंज हो सकता है, वो बाद में देखेंगे हम. S is to the right of R. ओके, तो अगर यहाँ पे R बैठा है, यहाँ फेस करते हो, तो उसका राइट इधर होगा. तो S is to the right of R. तो अभी S का पार्टनर तो Q है, ये फिक्स हो गया. R का पार्टनर P है, इनकी पोजीशन भी फिक्स हो गई. इफ R इज फेसिंग वेस्ट, ओ गुड, तो लकीली हमारा डायग्राम ऐसे ही अच्छा हो गया, वेस्ट में. देन Q इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? तो नॉर्थ. Q इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन. आंसर इज नॉर्थ. लेट्स से अगर आपने डायग्राम बनाते समय अगर R को कहीं और लिख लिया होगा, तो कुछ नहीं, आपको वेस्ट उस हिसाब से समझना है एंड देन बाकी के डायरेक्शंस आपको समझने, क्योंकि बेसिकली जो डायरेक्शंस होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड तो होंगे. रिलेटिव पोजीशंस आपको सिर्फ अच्छे से समझनी है. Pointing to a man, pointing to a man in the photograph, Khushi says, "This man's son's sister is my mother-in-law." Okay, वहां पे जो एक मैन है, उसकी उस मैन सन्स, उसकी सिस्टर, मतलब ये मैन की डॉटर ही हो गई. ये भी याद रखना, ये सिस्टर ऐसे ठीक है. इज माई मदर इन लॉ. तो यहाँ पे खुशी है, वो बोल रही है मेरी मदर इन लॉ है, तो ये इसका कोई बेटा भी होगा, उसकी ये वाइफ है. सो हाउ इज खुशीज हस्बैंड, मतलब यही पर्सन, रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? तो
इसकी मम्मी का पापा है ये, तो उसका ग्रैंडफादर हो गया। तो हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू मैन इन फोटोग्राफ? ग्रैंडसन, ये उसका ग्रैंडसन है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। ओके, सुरेश, उसकी एक सिस्टर है, उसका जो हस्बैंड है वो है राम। राम इज रानीज ब्रदर, ये सब सेम ही ऑर्डर पे है। रानी का ब्रदर है राम। राम्स फादर इज मधुर। फादर है। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। ओके, शीतल मधुर की मदर हो गई फिर अभी। एंड रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, तो इसकी बहू होगी, मतलब हम मान के चलते हैं कि वो इसी की वाइफ है। रोहित इज रानीस ब्रदर सन, रानी का ब्रदर राम ही मान के चलते हैं हम लोग। एंड उसका बेटा है, तो इन दोनों का बेटा है रोहित। हु इज रोहित टू सुरेश? ये सब टाइम पास ऐसे ही था। तो रोहित जो है वो सुरेश रोहित का मामा है, वो उसका भांजा है। इंग्लिश में वो नेफ्यू हो जाएगा, तो आंसर इज नेफ्यू। सो लास्ट क्वेश्चन, देर आर सिक्स there are six children playing football, namely A, B, C, D, E, and F. A and E are brothers. Okay, A और E तो ब्रदर हो गए। F is sister of E, तो ये सिबलिंग्स तो है। C is the only son of A's uncle, तो A का फादर, उसके ब्रदर, और उसका ये अकेला एकलौता बेटा है। B and D are daughter of brother of C's father. C ये है, उसके फादर ये, उसके ब्रदर, तो यहाँ पे बी डी। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई और भी ब्रदर हो, उधर हो बी डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो अगर हमने ये अज्यूम किया तो सिस्टर है, यहाँ पे अज्यूम किया तो कजन है। बट अगेन आई थिंक इंस्टीट्यूट यहाँ पे यही आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, सिस्टर। तो रिलेशन वाले क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे होता है कि या तो वो क्वेश्चन सेट करने में ही वो कुछ इंफॉर्मेशन जो उनको और देनी चाहिए डिटेल में वो दे नहीं पाते, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच के रखते हैं और वो उसी एंगल में सोचते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए था कि सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि दैट ए हैज ओनली वन अंकल, वैसे करके हम कुछ बोल सकते थे जिससे आप समझ में आता था कि उसका दो ही यहाँ पे जो है, ये बस दो ही भाई है और कोई नहीं। तो उस केस में 100% आंसर सिस्टर होगा। बट स्टिल दैट इज ओके। एंड ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल ये पेपर बहुत इजी था। आफ्टर मीन्स यू कैन से आप लास्ट कितने भी अटेम्प्ट आप इसको कंपेयर कर लो, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इजी पेपर था ये। एंड आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से किया हो। इन केस अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में नहीं ये आंसर होना चाहिए या फिर इसको ऐसे कर सकते थे, या फिर उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मैं उसमें आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू।